بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی اسکالر شاہ حسین چینل سننے والوں کو شاہ حسین کی طرف سے السلام علیکم۔ معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں علم انداز شناسی کے متعلق بتائیں گے۔ آپ کسی کا انداز دیکھ کر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کا وکیل کس موڈ میں ہے، آپ کا گواہ کس موڈ میں ہے، اور آپ کے جرح کرنے والے کس موڈ میں ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، ویڈیو کو آگے سننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیا کریں تاکہ آئے روز آپ کو نئی معلومات پر مبنی نئی فائدہ مند ویڈیو آ سکے اور آپ سن سکیں، اور ویڈیو دوستوں کو شیئر بھی کیا کریں۔ تو معزز سامعین کرام، ہمارے چینل کی اکثر ویڈیوز کا تعلق انتہائی اعلیٰ ذہانت سے ہوتا ہے، تو علم انداز شناسی، نفسیات اور تمام روحانی علوم کو سمجھنے کے لیے کسی بھی موٹے دماغ کی، مادیت پرست دماغ، موٹا دماغ، کم عقل دماغ میں جگہ نہیں ہوتی۔ ان علوم کو صرف اور صرف سنجیدہ ذہن، سائنٹیفک دماغ، اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ، پروفیسر، برسٹر، وکلاء، جج صاحبان اکثر سمجھتے ہیں اور ان سے فائدہ بھی حاصل کرتے ہیں۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، کسی شخص کے الفاظ پر یقین کرنے کی نسبت یا کسی کے الفاظ پر یقین کر کے آپ غلط نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں، ہمہ وقت کسی بھی شخص کے چہرے پر اور اس کی حرکات و سکنات پر بھرپور توجہ دے کر اگر آپ اس پر غور کریں تو آپ کو کوئی فریب نہیں مل سکتا، بلکہ سچ پوچھو تو بندہ ناچیز بھی اکثر انتہائی سے انتہائی گہرے معاملات کی تہہ کو پہنچ جاتا ہے، تو اس میں راز انہی علوم کا ہے۔ ابھی ہم آتے ہیں اپنے مضمون کی طرف، یا ہم آپ کو ایک مصنوعی عدالت کا نقشہ، مصنوعی گواہ، مصنوعی وکیل، مصنوعی سب کچھ پیش کریں گے۔ عدالت میں جو کچھ کہا جاتا ہے اس کا مکمل ریکارڈ رکھا جاتا ہے، اور اگر جج صاحب یا کوئی وکیل غلطی کرے تو اس کے خلاف اپیل بھی دائر کی جا سکتی ہے۔ اکثر ممالک کے قوانین میں جج اور وکلاء حضرات اس نکتے سے اچھی طرح آگاہ ہوتے ہیں، اس لیے وہ خاصے محتاط ہوتے ہیں کہ ان کے منہ سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جس سے انہیں فیصلہ کرنے میں غلطی ہو یا اپنے موکل کی صفائی پیش کرنے میں دقت ہو۔ حتیٰ کہ اپنی حرکات و سکنات کے ضمن میں بھی خاص احتیاط سے کام لیتے ہیں، کیونکہ اکثر جج صاحبان، بیرسٹر، بڑے بڑے وکیل اور پروفیسر حضرات ان علوم کو جانتے اور سمجھتے اچھی طرح۔ فوجداری عدالت کا ایک جج ملزم کو جانچنے کے لیے آیا اور وہ قصوروار سے یا بے گناہ مختلف طریقوں سے سوالات کرے گا۔ جب اسے کوئی ایسا نکتہ مل جائے جو اس کی نظر میں ملزم کو بے گناہ ثابت کرتا ہے تو وہ کھڑا ہو جائے گا۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ ملزم قصوروار ہے تو بھی وہ کھڑا ہو کر
उसके खिलाफ पॉइंट पूरी शादोमात से देगा। यानी ये हर इदारे का, हर फील्ड का एक अपना मुकर्रर तरीक़ाकार होता है और उस तरीक़ाकार के मुताबिक हर इदारा चलता है। अक्सर कामयाब वकला, असल हमारा यहाँ से बताने का मतलब ये है कि आपने क्या देखना है। अक्सर कामयाब वकला आपने हरीफ, वकील, गवाहों और अरकान जेवरी को समझने के लिए अंदाज शनासी से काम लेते हैं। एक महर का कहना है कि अगर जेवरी का कोई मुतवक्को रुकन अपनी मुठियाँ भींच ले और वकील के दलाल के दौरान अपने बाजू बाहर की तरफ फैलाए, या मैं आपको ये बता दूं, हम जो वीडियो पेश कर रहे हैं इसको आपको बार बार संजीदगी से सुनना होगा और आपको बार बार गौर करना होगा और बार बार साथ दी गई तस्वीरों को गौर से देखना होगा। उस वक्त जाकर आपको इस वीडियो का फ़ायदा हासिल होगा। तो बात कर रहे थे, अपने बाजू बाहर की तरफ फैलाए तो उसे जेवरी का रुकन नहीं बनाना चाहिए। हाथों का अंदाज़ गैर लफ्ज़ी पैगाम देता है कि ये वकील फराख दिल है या तंग दिल या ज़हनी तौर पर मुद्दई से हमदर्दी रखता है वगैरह। एक और महर ज़ैल में इन सवालात के जवाबात हम बाद में देते हैं। एक और वकील महर का कहना है कि बाज़ अंदाज बिलखुसूस मुँह के करीब बहुत कुछ ज़ाहिर कर देते हैं। गर्ज के जेवरी के इंतखाब में अक्सर वकला दानिस्ता तौर पर उनके हरकत और सकनात का जायज़ा लेते हैं जो फ़र्द की खसूसियात और रुझानात का मुँह बोलता सबूत होती हैं। यानी वो अल्फाज के साथ साथ अपने जिन लोगों से ताल्लुक़ होता है उनकी हरकत और सकनात या अपने से जिरा करने वालों के हरकत और सकनात पर गहरी नज़र रखते हैं और उसके मुताबिक खुद चलते हैं। तस्वीर नंबर 69 देख ले गौर से। तस्वीर नंबर 69 में दिखाया गया अंदाज़ यूर ऑनर का है, लेकिन यह अंदाज़ महज कमरा अदालत तक ही महदूद नहीं बल्कि दीगर शोबा हयात में भी यह मुख्तलिफ अंदाज में जलवागर होता है। तस्वीर नंबर 70 में गवाही के कटरे में बैठे हुए शख्स के अंदाज से साफ पता चल रहा है कि वो अपने मौक़िफ़ से इनहराफ नहीं करेगा और वकीलों के लिए उसके जज्बात को उभार कर कुछ उगलवाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तस्वीर नंबर 70 जो है ये शख्स इंतहाई गहरे सुकून में और मज़बूत क़ुव्वत इरादी के लिहाज से बैठा है। इसकी आंखें बंद और मुंह भी बंद, यानी ये मजबूती से बैठा है। अदालत का एक मंजर तस्वीर नंबर 71 में अदालत के कमरे का सीन दिखाया गया है। तस्वीर नंबर 71 में अदालत के कमरे का सीन दिखाया गया है। मुतवक्को जेवरी के आगे खड़े दो वकील इनसे सवालात कर रहे हैं। ये तस्वीरें गौर से देखें। ऊपर जज साहबान बैठे हैं, नीचे दो वकील खड़े हैं, आगे 6 जेवरी बैठे हैं। जेवरी के पैनल में रखा जाए, 2 वकील इनसे सवालात कर रहे हैं ताकि ये फैसला किया जा सके कि किसे जेवरी के पैनल में रखा जाए और किससे माजरत की जाए। मुदर्जा झैल नुकात के बारे में फ़ैसला करते हुए आपका वकील होना ज़रूरी नहीं है। आगे दी गई तफसील को पढ़े बगैर खुद फैसला करें कि आप नंबर 1, ये ऊपर 6 नंबर दिए गए हैं। नंबर 1, एक जेवरी को क्यों कबूल करेंगे। नंबर 2, रद्द करेंगे। नंबर 3, ऐसे सवालात जारी रखेंगे। नेज़ किस वकील का खड़े होने का अंदाज़ अरकान जेवरी के इम्तिहान के लिए मौजू है। बात समझ आ रही है। नेज़ किस वकील का खड़े होने का अंदाज़ अरकान जेवरी के इम्तिहान के लिए मौजू है।
यहाँ 2 वकील खड़े हैं, आगे जेवरी बैठे हैं। ज़ैल में सवालात के जवाबात दिए जा रहे हैं। नंबर 1, पहला रुकन जेवरी, जिसके नीचे 1 नंबर लिखा है, मुट्ठी और बाजू बंद करके टांग पर टांग रख कर बैठा है। मुम्तहन वकील इसे कबूल नहीं करेगा। दूसरा रुकन जेवरी, जिसके नीचे 2 का हिस्सा लिखा है, पीछे की तरफ झुक कर कोहनियों को कुर्सी के बाजू पर टिकाए हाथ मिलाकर बैठा है। ये पुरएतमाद है। तीसरा रुकन जेवरी, जिसके नीचे 3 लिखा है, आगे झुककर सर को ढलकाए जंगले के ऊपर हाथ रखकर बैठा है। यह काबिल एतमाद है। चौथा रुकन जेवरी, अपने हाथ के पेट के सामने बांधे टांग पर टांग रखकर बैठा है। ज़ब्त व नफ्स की कमी ज़ाहिर होती है। पांचवा रुकन जेवरी, पीछे की तरफ झुककर हाथों को सर से सहारा देकर टांग पर टांग रखकर बैठा है। इससे सवालात करें ताकि अपने जायज़े का नतीजा ज़ाहिर करें। छठा रुकन जेवरी, जो सबसे आखिर में बैठा है, रानू पर हाथ रखे तावन के अंदाज में बैठा है। वो जेवरी का सरबराह बनने की सलाहियत रखता है। दलाइल देते हुए उसकी तरफ मुसलसल देखें और उसे कैल करने की कोशिश करें। आखिर में दाएं तरफ अली स्तादा वकील कमर पर हाथ रखे। होशियार बाहिया ने वकील कमर पर हाथ रखे और कोट के बटन खोले। साफ दिली की अलामत है और वो अरकान जेवरी के जायज़े के लिए नहायत मुनासिब है, क्योंकि उसकी पोजीशन मुनासिब है। जबकि दूसरा वकील मगरूराना अंदाज से खड़ा है। समझ आ रही है? दूसरा वकील मगरूराना अंदाज से खड़ा है, जो कि जेवरी को उसके खिलाफ करने का मूजब बन सकता है। दूसरे वकील का जो खड़े होने का अंदाज है वो मगरूराना है। समझ आई बात की? तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खड़ा हुआ आदमी क्या किरदार अदा कर सकता है, कमर पर हाथ रखे हुए वकील क्या किरदार अदा कर सकता है। समझ आई बात की? और जो कुर्सी पर बैठा है तस्वीर नंबर 70 में, वो किस पोजीशन का आदमी है आपको बताया गया है। जो उस पोजीशन में कोई भी बैठेगा तो वो नफसियाती तौर पर इसी तरह होगा। और तस्वीर नंबर 69 में जो खड़ा है, कोई भी शख्स इस पोजीशन में इस तरीके से खड़ा होगा तो अक्सर औकात उसकी नफसियात इसी तरह होगी जैसे इसकी है, योर ऑनर कहने का अंदाज। यानी तो इन चीज़ों को देखकर आप किसी भी वकील का, गवाह का, किसी भी शख्स का जायज़ा ले सकते हैं और अपने किसी भी मकसद के लिए अपने मुनासिब शख्स को मुंतखब कर सकते हैं, मुनासिब शख्स का इंतखाब कर सकते हैं। इस तरह की आइंदा भी इंशाल्लाह वीडियो आती रहेंगी। उम्मीद है कि साइंटिफिक आला जहानत रखने वाले हमारी इस वीडियो का तजर्बा करेंगे और इत्फाक भी करेंगे और उनको पसंद भी आएगी। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।